Laplace correction. And also say that this is the Laplace correction. तो न्यूटन का जो फॉर्मूला था वो तो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें 280 उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है और द एक्चुअल रिजल्ट इज 332 ऑलमोस्ट. So it means there is 16% error in the Newton formula. Next. Now, अब इसको फर्दर किसने मॉडिफाई किया या फर्दर किसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की? Laplace ने. According to Laplace, sound wave travel through air under adiabatic condition. He assumed that sound passes through air. He assumed that sound passes through air, sound travel through air under adiabatic condition. Adiabatic condition. So in what is adiabatic condition? जिसमें ना तो हीट एंटर हो, जैसे न्यूटन ने अज्यूम किया आइसोथर्मली ट्रैवल करता है, but he assumed that sound travel adiabatically. And what is adiabatical? Adiabatic condition in which no heat enter or leave the system. So it means adiabatic condition या adiabatic system is a system in which no heat enters or leave the system. In adiabatic system or condition, no heat can enter or leave the system. That is, the heat remains constant, but temperature does not remains constant. He assumed that ये जो साउंड है ना वो हमें पता है कंप्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड देन रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे प्रोपोगेट कर रहा होता है. ठीक है, यही हम अज्यूम करते हैं कि साउंड कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इस फॉर्म में आगे की तरफ प्रोपोगेट करता है. तो उसने कहा कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है ना ये बहुत तेजी के साथ हो रही होती है, कि जैसे ही हम बोलते हैं विद इन अ सेकंड दूसरे के पास आवाज पहुंच जाती है. तो इट मींस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस आर अकर्स वेरी रैपिडली. ये जो हीट कंप्रेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है ना उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो नेक्स्ट वाले रीजन में जा सके, बल्कि वो उसी रीजन में ही क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है. इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेप्लेस ने क्या एज्यूम किया कि जो साउंड वेव्स हैं they are moving very rapidly, so it means compression and rare fractions occur very quickly. So heat produced during compression have no time to go to their neighboring cooler region. तो यहां पे इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि he assumed that compression and rare fraction occurs so rapidly. Compression and rare fraction occurs very rapidly. बहुत तेजी के साथ हो रही होती है. तो जिसकी वजह से so that heat produced during compression
heat produced during compression is confined to its own region, is confined to its own region. Is heat produced during compression is confined into its own region. कि हीट जो कंप्रेशन के वक्त प्रोड्यूस होती है वो अपने ही रीजन में ट्रैप हो जाती है, कन्फाइंड हो जाती है, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो नेक्स्ट वाले रीजन में जा सके. एंड हैव no time and have no time to flow to its neighboring cooler region, to flow to its neighboring cooler region, neighboring cooler region, and have no time to flow to its neighboring cooler region, which is expanded during the rarefaction. Hence the temperature of the medium does not remains constant. Hence, क्योंकि heat तो produce हो रही है, hence the temperature of the medium does not remains constant. Hence the temperature of the medium does not remains constant, and the amount of heat is confined, and the amount of heat is confined. Hence the amount of heat is confined within the medium remain conserved. Within the medium remains conserved. So इसने क्या एज्यूम किया कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बहुत ही रैपिडली हो रहे होते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कंप्रेशन वो उसी कंप्रेशन वाले रीजन में ही ट्रैप हो जाती है, उसके पास क्योंकि टाइम ही नहीं है कि नेक्स्ट कूलर वाले रीजन में जा सके, क्योंकि नेक्स्ट कूलर रीजन उतने में कंप्रेशन में ट्रांसकन्वर्ट हो जाता है. हेंस द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, तो Boyle's law, या ऐसे लिख दें, so the relation between pressure and volume under adiabatic condition become, अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी वी गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 वेयर गैमा इज अ कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, वेयर जो गैमा है वो कांस्टेंट है, जिसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट एट constant pressure divided by, it is the ratio of molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume, जिसको हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज Cp over Cv. Now again, if now pressure of the gas changes from, अब हम दोबारा से जैसे हमने पहले न्यूटन वाले फॉर्मूला में किया था, if the pressure of gas, again the pressure of gas changes from
अगर चेंज हो जाए, चेंजेस फ्रॉम, जैसे पहले हमने किया था कि प्रेशर P था और चेंजेस फ्रॉम P टू P प्लस डेल्टा P, देन वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस, वॉल्यूम ऑफ गैस ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम V to V minus delta V. So in this case, then under adiabatic condition we have, then under adiabatic condition, then under adiabatic condition we have, हमारे पास अब फॉर्मूला बन जाएगा P प्लस डेल्टा P एंड V माइनस डेल्टा V और इसकी पावर गैमा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें एक फैक्टर बस ऐड हुआ है, अगर आप कंपेयर करें न्यूटन के और लैप्लेस में, उसमें था पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे पीवी पावर गैमा इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, गैमा इसमें इंक्लूड हुआ है जस्ट। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया हुआ था। अगेन अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, comparing equation 1 and 2, so we have, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, P V gamma equals to P plus delta P and another bracket we have V minus V delta V power gamma। अब हमने इसको कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, P V गैमा एज इट इज लिखते हैं, P प्लस डेल्टा P इसको भी हम एज इट इज लिखते हैं, और यहां पे बचे हम इस सेकंड वाली टर्म को V माइनस डेल्टा V लिखा हुआ है ना यहाँ पे। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक तरह इसका कलर चेंज कर देता हूं, कि हमने V से मल्टीप्लाई भी कर देना है और V से इस वाली टर्म को डिवाइड भी कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय V ऑफ दिस टर्म ओनली। ये हमने इसलिए किया ताकि हम V को कॉमन ले सकें। नाउ अब हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा V गैमा एज इट इज। तो देखिए बच्चे, P प्लस डेल्टा P भी एज इट इज, और इसमें से जब हम V कॉमन लेंगे तो V की पावर गैमा, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वी आर टेकिंग कॉमन, यहां पे V और इसकी पावर गैमा आ जाएगी। तो इन ब्रैकेट वी हैव जस्ट लेफ्ट विद 1 माइनस डेल्टा V ओवर V और इसकी पावर गैमा, क्योंकि हमने V कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह गया और न्यूमरेटर वाला V बाहर आ गया। अब हमने ये इसलिए किया ताकि हम इस V गैमा को इस वाले V गैमा से कैंसिल कर सकें, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ हमारे पास अब रिलेशन बच जाएगा, इन दिस साइड वी हैव जस्ट P और इन दिस साइड वी हैव P प्लस डेल्टा P and in bracket we have 1 minus delta V over V and whole power gamma. This is our equation number 3. अब हमने इसमें मैथ का फॉर्मूला यूज करना है, by applying binomial expansion। आई थिंक आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का 8 होता है, जिसमें ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला आएगा, जो कि क्या होता है कि फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए प्लस सेकंड टर्म कुछ भी nx है और इसकी पावर अगर n हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस
पावर को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। फिजिक्स में आप बस यही याद रखें, 1 प्लस एन एक्स प्लस आगे भी होता है एन इंटू एन माइनस वन, 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम आगे लिख देते हैं निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। ये हमें हायर टर्म्स निग्लेक्ट कर देनी है, हमें जस्ट यहां तक ही चाहिए, निग्लेक्टिंग हायर टर्म। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपेंशन सिर्फ इस वाले पे लगाएं, तो यहां पे देखें 1 की जगह पे हमारे पास 1 है, माइनस डेल्टा एक्स की जगह पे है डेल्टा वी ओवर वी। अच्छा, ये माइनस से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस और माइनस इस ब्रैकेट के साथ लिख दें, उस तरह भी आप लिख सकते हैं, प्लस एन। तो आपने क्या करना है, जस्ट पावर को सेकंड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हियर द पावर इज गैमा, तो हमने गैमा को जस्ट सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस टाइम हमारे पास, इसको अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएं तो ये वाली टर्म हमारे पास ये बन जाएगी 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन टी, इसी को उठा के हमने दोबारा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो वी हैव, अगर आप वैल्यूज पुट करें तो अब हमारे पास बच्चे रिलेशन आएगा P as it is. On the next side we have P plus delta P, which is also same, and after binomial expansion we have gamma delta V over P. Next is, अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई P with this P, so we have P and then we multiply this P with the second term, so we have माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर P। अब हम नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेक्स्ट टर्म इज डेल्टा P इज मल्टीप्लाई विद दिस वन, डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V। अब बच्चे ये P इस P से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है, इस टर्म को हम जब उस साइड पे लेके जाएंगे सो इट बिकम्स गैमा P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल्स टू डेल्टा P। और बच्चे हमें पता है डेल्टा P इज वेरी स्मॉल, डेल्टा V इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। जब आप दो स्मॉल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां पे अब आपके पास रिलेशन अगर हम देखें, गैमा P को इधर ही रहने दें और डेल्टा V ओवर V ऐसे हम लिख सकते हैं, डेल्टा V ओवर V उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इस केस में डेल्टा P एज इट इज और यहां पे आ जाएगा डेल्टा V ओवर V भी एज इट इज ही है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा P इज बेसिकली स्ट्रेस एंड डेल्टा T इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इलास्टिक मॉडुलस। अब हमारे पास गैमा P इज इक्वल्स टू E के इक्वल आ गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4 and we know that the speed of longitudinal wave is v is equals to under root E over rho, जो हमने न्यूटन फॉर्मूला में भी यूज की हुई है, फर्स्ट इक्वेशन जिसे कहते हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड में भी हमने को अप्लाई किया था। तो जब आप ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, पुट इक्वेशन, दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 5, पुट equation 4 in 5, so it becomes v is equals to under root गैमा की E की जगह पे गैमा P ओवर रो। अब इसको जरा हम स्प्लिट कर देते हैं, अंडर रूट P ओवर रो को एज इट इज रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट गैमा को मैं जस्ट सेपरेट कर देता हूं, क्योंकि ये वाला आंसर तो न्यूटन का भी आया हुआ है ना, ये वाला फैक्टर तो न्यूटन में भी, न्यूटन फॉर्मूला में भी आया हुआ है।
और इसकी वैल्यू हमें पता है 280 थी, ठीक है। और यहां पे गैमा की वैल्यू और एयर, गैमा की वैल्यू आपने याद रखनी है, कितनी है, अंडर रूट 1.41, लिख देता हूं। और एयर गैमा इज इक्वल्स टू 1.41 होता है। व्हेन यू मल्टीप्लाई देम तो इट बिकम्स 333 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और गैमा की वैल्यू फॉर एयर कितनी होती है, 1.41 होती है। नेक्स्ट इज 333 meter per second, which is very close to the experimental value, which is very close to the experimental value. Hence, the Laplace correction is valid. It is very close. It is very close, almost equal to the experimental value. Hence, Laplace correction is valid now. So this is about the Laplace correction.